देख रहे हैं सर्फ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की और बेहतर देर के हुए चलते हैं रानीगंज की तरफ। और क्या है आज की खास खबर, आइए नजर डालते हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से आज रानीगंज के पंजाबी मोड़ से रानीगंज रेलवे स्टेशन तक एक महारैली निकाली। इस महारैली में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील रुईदास के अलावा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पश्चिम बर्धमान जिले के तमाम नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन्होंने सरकारी संस्थानों में अस्थायी नौकरी का इंतजाम संख्या के आधार पर SC ST OBC को 100% आरक्षण प्रदान करने, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिखों को संवैधानिक सुरक्षा देने सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में ये रैली निकाली। इस बारे में सुशील रुईदास ने बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों से प्रेरित होकर चंद्रशेखर आजाद लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC के अधिकारों को दबाया जा रहा है और इसके खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों को सामने रखकर लड़ाई लड़ रही है और जब तक इनको इनका अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता ये संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और TMC लोगों को ये दिखाना चाहती है कि उनके सिवा चुनावी मैदान में और कोई नहीं है, लेकिन सच ये नहीं है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भी लोगों के हितों की बात कर रही है, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC समाज के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ही चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पूरे देश और बंगाल में संघर्ष कर रही है। साथ ही उन्होंने इस विषय में और क्या कहा, आइए जानेंगे हम ये सब कुछ विस्तार के साथ। যে মহারেলি আপনারা জানেন পুরো দেশ এখন উত্তাল, পুরো ভারতবর্ষে SC ST OBC সমাজের একটা বড় মুভমেন্ট হচ্ছে, ভীম আর্মি আজাদ সমাজ পার্টি একটা পুরো দেশ জুড়ে একটা মুভমেন্ট হচ্ছে। লক্ষ্যটা কি আপনারা জানেন, UGC বিলের বিরুদ্ধে সবর্ণ সমাজ যেভাবে রাস্তায় নেমে SC ST OBC দের বিরোধ করছে, তার প্রোটেস্টে আমরা UGC সমর্থনে USGর সমর্থনে আমরা চাইছি এই UGC কোন রকম 100% লাগু করতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কি যে আমাদের যে SIR, এই SIR এর চক্রান্তের বিরুদ্ধে। 3 নম্বর হচ্ছে কি আমাদের সরকারি সংস্থায় যে ক্যাজুয়াল, এই ক্যাজুয়ালটাকে হাটিয়ে পার্মানেন্ট করতে হবে। চতুর্থ হচ্ছে কি যে SC ST OBC দেরকে তাদের সংখ্যার অনুপাতে রাজ্যের প্রত্যেকটা দপ্তরে তাদেরকে 100% নিযুক্তি করতে হবে। পঞ্চম হচ্ছে কি মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখদেরকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দিতে হবে। এখন এই বিষয়টা খুব ভাইটাল রয়েছে, আপনি জানেন UGCর মতোই আমাদের মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের একটা বিষয়টা খুব ভাইটাল। আপনারা জানবেন যে আজকে বিভিন্ন জায়গায় মসজিদে ঢুকে হামলা করা হচ্ছে, চার্চে ঢুকে হামলা করা হচ্ছে, কিন্তু ঘটনা কি যে ভারতের সংবিধান আমাদের SC ST OBC দেরকে ফান্ডামেন্টাল রাইট দিয়েছে যে এরা যে কোনো ধর্মকে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এই ধর্মটাকে বাঁচানো ঠেকা শুধুমাত্র RSS আর বিজেপি লোকেদের হাতে রয়ে গেছে। তো আমরা চাই যে ভারতের সংবিধান যখন আমাদের ভারতবর্ষে SC ST OBC মানুষদেরকে অধিকার দিয়েছে, তো তাদেরকে সে সাংবিধানিক সুরক্ষাটা দিতে হবে, তারা যেন সেই মান সম্মানের সাথে তাদের বিচারকে রাখার একটা সহমতি পায়। ষষ্ঠ হচ্ছে প্রাইভেট স্কুলে SC ST দেরকে রিজার্ভেশন দিতে হবে এবং বেসরকারি কলকারখানাগুলো হলে 100% রিজার্ভেশন দিতে হবে। সাথে সাথে আরেকটা যেটা কারেন্ট মুদ্দা এখন আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটিতে আপনারা জানেন যে সমস্ত সাফাই কর্মচারী রয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে তাদের ডিমান্ড নিয়ে, তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে ধর্নায় বসে আছে। সরকার ওদের, কর্মচারী ওদের, তবু এই যে নোটেঙ্কি আমাদের পশ্চিমবাংলা চালাচ্ছে আমাদের গরিব সাফাই কর্মচারীদেরকে নিয়ে, তার প্রতিবাদে আমরা মুভমেন্ট করছি এবং আমরা আমাদের সাফাই কর্মচারীদের যে দাবি দেওয়া, এই দাবি দেওয়াটিকে আমরা 200% সহমত করলাম। শুধু সহমত না, বলকি 20 দিন পর্যন্ত পশ্চিমবাংলা রাজ্য সরকারকে এবং আমাদের আসানসোলের যে মেয়র ওনাকে আমি আদেশ করছি বা অনুরোধ করছি যে 20 দিনের মধ্যে 20 তারিখ, ফেব্রুয়ারি 20 তারিখ আপনাদেরকে সময় রইল। এই 20 দিনের মধ্যে আমাদের সাফাই কর্মচারীদের যে দাবি, সেই দাবিটাকে যদি আপনারা না মানেন 20 তারিখের পর यानी 21 ফেব্রুয়ারি থেকে সেই দাবিটা আদায়ের জন্য ভীম আর্মি আজাদ সমাজ পার্টি সাফাই কর্মচারীর হয়ে সম্পূর্ণরূপে जमीन स्तरीय लड़ाई আমরা করব এবং তাদের से अधिकार আদায় করব। আমরা फिर आने वाले दिन में बताएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से TMC बीजेपी के द्वारा ये लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा, या TMC और बीजेपी छोड़ करके फील्ड में कोई है नहीं। लेकिन आपको बता दे रहे पूरा भारत में एक मजबूत पिलर चंद्रशेखर भाई है, और पूरा बंगाल में भी वो भी चुनाव लड़ेगा। ये आने वाले दिन में जनता तय करेगा किसको चुने। हमारे पार्टी का जो मूल
एजेंडा यही है, हम मिशन कांशीराम साहब का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का उस अधूरा मिशन को पूरा करना चाहते। हमारे मिशन क्या था, बाबा साहब ने कहा कि हे मेरे समाज के लोग, जाओ आप अपने घर की दीवारों पे लिख देना कि तुमको इस देश का शासक बनाना है। लेकिन हमारे लोग क्या करें, वोट देकर उन लोगों को शासक बनाते, फिर उस शासक का गुलामी करें। विकल्प ना होने की वजह से आज हमारे लोगों के पास आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की विकल्प है। उस विकल्प लोगों के सामने खड़ा करने का ये हमारा मकसद है। आने वाले दिन में संविधान का हिस्सा आधार पे इस देश में राज होगा। रानीगंज विधानसभा उससे अलग नहीं होगा। बीजेपी टीएमसी का लड़ाई नहीं है, बल्कि ये हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को बुड़बक बनाने का एक नाटक चल रहा। ये आज हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुका है कि आज के तारीख में यदि बंगाल में आरएसएस बीजेपी मजबूत हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का राज में मजबूत हुआ। यानी इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये और हमारे लोगों को अंधेरे पे नहीं रह सकते, क्योंकि इनका राह दिखाने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। और बंगाल में आपको बता दे रहे, जबरदस्त तरीके से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ी जाएगी, और जहां लड़ेंगे वहां मजबूती के साथ लड़ेंगे। आने वाले दिन में हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज का हर समस्या के ऊपर संसद या विधानसभा के अंदर में आवाज उठाने का काम करेंगे। संविधान पूरा भारत में 100% लागू है। क्या बंगाल भारत के बाहर में? क्या बंगाल संविधान के बाहर में? क्या हम चाह रहे पूरा भारत में 100% लागू हो। और हमारे ये जो मांग है, आज का जो रैली है, ये रैली में 7 मांगों को लेकर के हम मूवमेंट करें। आपको पता होगा इसमें एक मुद्दा ये भी है कि संख्या के अनुपात में एससी एसटी ओबीसी को 100% हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये मुद्दा बंगाल का आज के तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है, और सबसे बड़ा जरूरी जो है, इसके लिए जाति आधारित गिनती करना होगा। लेकिन सरकार जानबूझ करके जाति आधारित गिनती नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि एससी एसटी का तो पता है ओबीसी को जानबूझ करके अंधेरे में रखने का ये साजिश चल रहा है। ये एजेंडा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एजेंडा है, और संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होना चाहिए, हम लोग के एजेंडा में शामिल है आज के तारीख में। चंद्रशेखर भाई बहुजनों के एक बहुत बड़ा चेहरा है, उनका लिए या भीम आर्मी और मेरे लिए कोई बात नहीं है। आज पूरा भारत अगर चंद्रशेखर भाई का आंदोलन के साथ जुड़े हैं, आपको हम बता दे रहे पूरा। आप देखिए, इससे पहले एक रामपुर हाट में आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। हम लोगों ने भीम आर्मी का माध्यम से पूरा बंगाल के अंदर में लगभग 20 जिलों के अंदर में डीएम डेपुटेशन करवाया, सीढ़ी में जाकर के मोर्चा खोला, वहां पर भी डेपुटेशन हम लोगों ने किया। ये भीम आर्मी के माध्यम से पूरा प्रदेश में वो शक्ति अभी हम लोगों के पास है कि एक ही दिन एक ही टाइम में पूरा बंगाल के हर जिला में हम लोग मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं, और जहां पर भी अन्याय अत्याचार होगा उसके लिए हम लोग पहुंचने के लिए तैयार है। संदेश मिलना चाहिए, जहां किसी का नहीं सुन तो आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सुनवाई जरूर करेगा, इतना तो भरोसा लोगों का हो गया। इसका बात यह है, समाज को गुमराह करने का काम है। हम एकता मिशन का मतलब लोगों के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के बीच में एक भाईचारा को बढ़ावा देने का हम काम करें, इसमें सबके लिए। लेकिन आप देखिए यूजीसी का मामले में या सुप्रीम कोर्ट जो स्टे ऑर्डर लगाया, स्टे लगा दिया, किसका कहने पर? ये मनोवादी सवर्ण लोगों का सिर्फ और सिर्फ आंदोलन। सवर्ण लोग कितने परसेंट है भारत में? सिर्फ और सिर्फ 15%। 15% भी नहीं विरोध में उतरा। मुसलमान विरोध नहीं किया, ओबीसी विरोध नहीं किया, क्षत्रिय ने विरोध नहीं किया, शेड्यूल कास्ट ने विरोध नहीं किया, वैसे लोगों ने विरोध नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ सवर्ण लोगों का विरोध का वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चल, तो जातिवादी कौन कर रहा बताइए? हम तो सबको जोड़ना चाहते हैं। इस देश के अंदर भी बहुसंख्यक लोगों को यूनाइटेड करके इस देश के अंदर में बहुजन समाज के अंदर में जो समस्या और समस्या का समाधान करना चाह रहे, तो जातिपात कौन कर रहा? जातिपात तो वो लोग कर रहा, जातिपात को बढ़ावा दे रहा, इसीलिए यूजीसी का विरोध कर रहा। सवाल का जवाब हम पहले दे चुके हैं। हमारा मकसद ये है कि जो कांशीराम साहब का सोच था, बाबा साहब का जो सोच था, इस देश के बहुजन समाज को शासक बनाना, हमारा साथ शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शासक नहीं बने आज तक। जब तक हम शासक नहीं बनेंगे तब तक हमारा साथ शोषण होता रहेगा। इसीलिए हमारा मिशन आज भी अधूरा है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ संगठन नहीं है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब, कांशीराम साहब, फुले साहब का जो मिशन है, उस मिशन को चला रहे हैं। हमारा अंदाजा चुनाव लड़े या ना लड़े, चुनाव हारे या जीते, इस देश के अंदर में बहुजन समाज, बहुजन महापुरुषों का जो अधूरा मिशन है, उस मिशन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा। सुशील रुईदास, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।